A very good evening, dear friends. Once again, I am here with a very important topic of macroeconomics, that is the income determination. It's a Keynesian theory, and you know that the Keynes was the father of macroeconomics. As in 1929, there was economic depression in America, and Keynes was given the charge to find out the reason and to solve this problem of economic recession. And Dickens, in his path-breaking book, General Theory of Employment, Interest and Money, he studied the problem, gauged the problem, and visualized it, and gave the remedy to get out of this recession. So, in economic depression 1929, it was found that there was a unsold stock. There was everywhere negativity was there. Unemployment was increased at a massive level. It was not confined only to America, but it spread to the different parts of the world also. And this massive problem was increasing day by day, and this economic crisis leads to the further other social and political problems. So in that light, he focused that to overcome this problem, we need to increase the demand. Actually, demand was not there, and there was a production capacity, and this production capacity was not utilized. So unsold stocks problem was there. So what he suggested to increase the demand, for that he talks about the autonomous investment. Let us see it from the starting, that is what is that theory and what is the different words are there which are often used and which helps to determine this employment, output and income. So aggregate demand and its measurement components. So aggregate demand is what? Aggregate demand refers to the sum total of desired demand measured in terms of desired expenditure for all goods and services in economy during the period of an accounting year. तो एक साल जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसमें हम जो डिज़ायर्ड हमारा जो एक्सपेंडिचर है और जो डिज़ायर्ड डिमांड है वो उसको है ये रेफर करता है. एग्रीगेट डिमांड किस बात को रेफर करता है? सम टोटल ऑफ डिज़ायर्ड डिमांड. पूरी इकोनॉमी में जो डिज़ायर्ड डिमांड है वो पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात कर रहा है, वो और उस पर कितना खर्चा हुआ, क्योंकि जो इनकम होता है वही एक्सपेंडिचर भी होता है. तो इनकम हैज़ वन एस्पेक्ट एंड एक्सपेंडिचर इज अनदर वे ऑफ सीइंग द सेम प्रॉब्लम. सो एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट एक्चुअली रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डिजायर्ड डिमांड, ओके, फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. तो ये हमारा हमने देखा. नेक्स्ट हमारा स्लाइड है मेजरमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या क्या है? AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. C इज इक्वल टू कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X माइनस M, दैट इज अ नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स. In our syllabus there is a only two sector model is there, so we'll often we'll talk about AD is equal to C plus I. We'll just leave G plus X minus M because it's a four sector model, it is mentioned here. Okay, so these are the components of aggregate demand, where C stands for private consumption expenditure, I for private investment expenditure. Okay, now next slide. This is the aggregate supply and its measurement components. क्या क्या होता है aggregate supply? तो aggregate supply AS से इसको डिनोट करते हैं, refers to the desired level of output of all goods and services in the economy during the period of 1 year. एक साल के अंतर्गत जितने भी जो वस्तुएं और सेवाओं का जो डिजायर्ड आउटपुट है उसको इंडिकेट करता है इकोनॉमी में एक साल के अंतर्गत जो होता है. तो एक इसको हम डिनोट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई AS से. और जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इसको हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं. 45 डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री, और वहाँ से ये शो करता है इक्वलिटी बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. 45 डिग्री दैट इज़ अ कांस्टेंट रेट से वो इंक्रीज करता है, और उसको हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, जबकि एग्रीगेट डिमांड वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है. गेट पॉइंट? सो ओके, सो इट्स एग्रीगेट सप्लाई. और इसके बारे में बता दूं कि किन्सन जो एनालिसिस है, किन्सन एनालिसिस में एग्रीगेट सप्लाई को क्या रेफर करता है? इट रेफर्स टू द ex ante, that is a planned aggregate output produced in the economy in a given year.
or in a two-sector model, in the absence of indirect taxes or subsidies, the value of total final goods and services is distributed among the factors of production, जैसे wages हैं, wages to the labor, interest to the capital and drain to the land. So whatever is left over is appropriated by the entrepreneur and is called profit. Thus the sum total of aggregate factor payment in the economy, that is national income, is equal to the aggregate value of output of final goods, that is aggregate supply. So aggregate supply is equal to S is equal to national income. So therefore aggregate supply curve is represented by 45 डिग्री लाइन. वो हम आगे दिखाएंगे आपको वो कहाँ से स्टार्ट होता है. 45 डिग्री लाइन से एग्रीगेट सप्लाई स्टार्ट होता है और ये इक्वलिटी शो करता है इसके बीच में, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बीच में ये इक्वलिटी को आउटपुट इनकम या आउटपुट हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो उसके बीच में इक्वलिटी को शो करता है. हम आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पर मेजरमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस, कंजम्पशन और सेविंग. इसके दो इनकम के दो ही भाग हैं. पहला है कंजम्पशन और सेविंग. अगर इनकम हमारी जो आय है उसको हम या तो हम कंजम्पशन पर खर्च करें, उपभोग कर लें, या उसको हम बचा लें, और बाकी किसी होर्डिंग की बात हम नहीं करते हैं. ओके. और नेक्स्ट है कंजम्पशन फंक्शन. इट इज स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन सी एंड इनकम वाई. सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई. अब यहाँ जो डायग्राम है, ग्राफ है, देखिए सी, ये देखो सी को दिखाया गया है, और ये जो सी बार दिखाया गया ना, ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन. ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है कि जब इनकम लेवल हमारा जीरो है और जीरो लेवल पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता ही है. ऐसा देखा है कि जो बेगर्स होते हैं या जिनके पास कोई इनकम नहीं है वो भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करते ही हैं. या मान लीजिए किसी महीने में आप पेरेंट्स को इनकम नहीं मिलती है तो क्या पूरा परिवार भूखे रहता है? ऐसा नहीं होता है. वो क्या होता है कि पास जो सेविंग होती है उसके आधार पर वो कंजम्पशन करते हैं. मतलब कहने का मतलब यह है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है. इसलिए ये जो इनकम लाइन है ये हमारी इनकम लाइन है. इनकम लाइन से इधर हमारे इस तरफ जो है ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन का एरिया है. तो C इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला था, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर आधारित है. C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. इधर हम एक्स एक्सिस पर इनकम लेते हैं और वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन लिया हुआ है. तो ये C का कर्व है, कंजम्पशन फंक्शन का कर्व है, और ये Y है इनकम. So C bar is equal to minimum consumption, also called autonomous consumption. B is equal to MPC, marginal propensity to consume, showing the slope of C line और C function का ये. तो ये है हमारा कंजम्पशन फंक्शन. नेक्स्ट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC एंड MPC. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों के डिफरेंस भी पूछा जा चुका है. तो APC का क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसका फॉर्मूला होता है C डिवाइड बाई Y, कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम. इसको डिफाइन कैसे करते हैं APC को? कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम. और यहाँ पर हम यह डायग्राम हम देख रहे हैं और यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देख रहे हैं. APC इक्वल टू C बाई वाई. और व्हेन इनकम इज ₹100 करोड़ एंड कंजम्पशन इज ₹80 करोड़, तो APC का क्या होगा वैल्यू? दैट इज 80 बाई 100, दैट इज 0.8. व्हेन Y इज इक्वल टू ₹200 करोड़ एंड C इज इक्वल टू ₹120 करोड़, देन APC इज इक्वल टू व्हाट? 120 डिवाइड बाई 200, दैट इज 0.6. तो ये हमारा कंजम्पशन है वाई एक्सिस पर, और इनकम है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो ये इनकम, ये है इनकम 100 से 200 हुआ. अब यहाँ पर हम डेल्टा, अगर इनकम के चेंज को दिखाएंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिसकी हम चर्चा अभी फिलहाल नहीं करेंगे. तो हमारे यहाँ पर बस केवल 100 है, इसको 100 दिखाया गया यहाँ पर, और ये 80 है हमारा कंजम्पशन. तो 100 बाई 80, ये 0.8 आया. फिर देखिए यहाँ पर 200 हुआ तो 200 बाई 120, तो ये 0.6 आया. तो इस तरीके से ये APC की वैल्यू दिखाया है. अब हम आते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये क्या होता है MPC भाई? MPC होता है कि एडिशनल कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम. एडिशनल कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल, मतलब इनकम में बढ़ोतरी के बाद इनकम जब बढ़ता है तो उसकी वजह से कितना कंजम्पशन बढ़ रहा है उसके रेशियो को ये बताता है. तो MPC इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा Y. अब हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही सुंदर डायग्राम बना हुआ है. अब यहाँ पर देखिए डेल्टा C को ये दिखा रहा है और डेल्टा Y, ये कंजम्पशन हमने Y एक्सिस पर लिया हुआ है और X एक्सिस पर में क्या लिया हुआ है? इनकम लिया हुआ है. तो ये 100 से 200 हुआ, तो डेल्टा Y कितना हुआ? 200 माइनस 100, दैट इज 100. और डेल्टा C कितना हुआ? आप यहाँ पर देखो कंजम्पशन कितना? 120. देखो ये लाइन, ये 120 है.
और यहाँ पर चेंज जो यहाँ से हुआ तो ये 80 ये है, तो 120 माइनस 80 कितना हुआ 40 हुआ, तो डेल्टा सी की वैल्यू 40 हो गई, डेल्टा वाई की वैल्यू 100 हो गई, तो एम पी सी की वैल्यू क्या हुई डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई दैट इज 40/100 इज इक्वल टू 0.4, एम पी सी की वैल्यू है। सी सी जो स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन, सी सी क्या है स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसको हम सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई से दिखाते हैं। व्हेन इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 100 crore to 200 crore, consumption increases from rupees 80 crore to rupees 120 crore, so that MPC, ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो ये बहुत ही MPC का अब ये MPC 0 हो सकता है नहीं हो सकता है, हाँ APC की वैल्यू क्या होती है ये हम अलग से इसके लिए अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट अब आता है सेविंग फंक्शन। तो हमने देखा कि AS मतलब एग्रीगेट सप्लाई के दो भाग होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। अब ये सेविंग फंक्शन कैसे निकलता है ये देखिए, इट स्टडीज द रिलेशनशिप, ये सेविंग फंक्शन क्या है एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, बार बार मेरे हाथों से हो रहा है। प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग फंक्शन, इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे आपने सी इक्वल टू एफ वाई कहा, इस तरह एस इक्वल टू एफ वाई है। अब ये जब जीरो लेवल पर सेविंग क्या होगी निगेटिव होगी ना, क्योंकि y माइनस सी इक्वल टू एस होगा, तो y में से c जब माइनस करेंगे तो जीरो लेवल पर c बार यहाँ से स्टार्ट होता है, तो s का निगेटिव होगा, तो हमेशा s जो है निगेटिव से ये स्टार्ट होता है, ये लाइन निगेटिव रहेगी। और इसका इक्वेशन क्या होता है s इक्वल टू माइनस एस बार प्लस एस वाई, तो s बार क्या हुआ सेविंग व्हेन y इक्वल टू 0, s बार s इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और स्लोप ऑफ s लाइन और s फंक्शन। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन हुआ। अब हम आते हैं अगले स्लाइड पर, प्रोपेंसिटी टू सेव, APC और MPC। APC इक्वल टू S बाई वाई, सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम, सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम, और ये हमारा है सेविंग फंक्शन। और हमने जैसे MPC में दिखाया था उसी तरह यहाँ भी दिखा देंगे कि 100 से सेविंग 200 हो गया, तो ये डेल्टा S को ये दिखाएगा, और ये चेंज जो है यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा सॉरी ये डेल्टा y को दिखाएगा और ये डेल्टा s को दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर व्हेन y इक्वल टू 200 यहाँ पर जब है तो सेविंग कितना है 80, सेविंग कितनी है 80 करोड़, ठीक है ये 80, तो 80 करोड़, सो दैट MPS इक्वल टू डेल्टा सी डेल्टा s बाई डेल्टा y, डेल्टा सी नहीं डेल्टा s बाई डेल्टा y, तो 60/100 इज इक्वल टू 0.6। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई होगा, एडिशनल सेविंग पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम। ओके, सो एक्स आंटे और एक्सपोज का कॉन्सेप्ट किन्सियन थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्स आंटे और एक्सपोज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स आंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्लान सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड को अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको ध्यान से, मैं अंडरलाइन मैंने पेंसिल नहीं लिया हुआ है। तो प्लान सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्स आंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्लान सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और डिजायर्ड सेविंग, प्लान्ड को या डिजायर्ड को। Ex ante saving is what the saver plans to save or intend to save at different levels of income in the economy. Okay, likewise ex ante investment is what the investors plan to invest or intend to invest at different levels of income in the economy. Since savers and investors is an economy are different set of persons and guided by different set of factors. बिल्कुल सही बात है कि दो अलग अलग ग्रुप हैं, सेविंग करने का क्लास अलग है और इन्वेस्टमेंट का क्लास अलग है, और दोनों के अपने अपने मोटिव हैं, दोनों का जो इंड्यूसमेंट है इन्वेस्टमेंट करने का या सेविंग करने के, दोनों के अलग अलग फैक्टर्स हैं. द लेवल ऑफ एक्स एंटे सेविंग में और मे नॉट बी इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो, लेकिन जिस बराबर होगा तो वो होगा डिजायर्ड लेवल. सो द एस एंड आई मे नॉट बी इक्वल. एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू रियलाइज्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो वास्तव में होता है इन द इकोनॉमी. एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट हैव आइडेंटिकल डिफिनीशंस. एक्सेस ऑफ इनकम flow over consumption flow in economy during period of 1 year. Accordingly, ex post saving is always equal to ex post investment. Okay, ex post saving is always equal to ex post investment.
ये बात हम अंडरलाइन करने की। सो इस प्रकार हमने इस एक अच्छे से वीडियो को समापन किया। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ठीक है, और कमेंट कीजिए अपने। थैंक यू, बाय 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 बाय।